Hi, good evening all. This is Ravindra here from NJ Group. Welcome all the investor into the forum of Saturday School. Thank you all the partners for inviting your customer into the Saturday School forum. Right. So aim of the Saturday School is spreading as much as awareness towards creating wealth and transforming lives. That is what our core objective behind this Saturday School series. Today we are going to discuss with a very interesting topic which is how to know what to buy. कैसे जाने क्या खरीदना है because we are running with overloaded information and sometimes we feel domestic equity will do better, sometimes we feel gold will do better, sometimes we feel कि fixed income बेहतर है, sometimes we feel international equity will do better, and so on and so forth, right? So that is always a confusion mode कि कौन सा asset class यहाँ से perform करेगा as far as investment is concerned. To address this confusion, to address this question, we have been designed the today's session how to know what to buy. To address this session, we have with us fund manager Mr. Vikram Dhawanji from Nippon India Asset Management Company. About Vikramji, he has been completed his B Mechanical from Nagpur University. He has been completed PG Diploma in Materials Management. Sir has been worked with many reputed organizations like Reliance AIF Management, Reliance Capital, Gold Metrics at Singapore, so on and so forth, right? So, Vikramji's expertise in fund management as well as risk management. Sir has been experts in investing in corporate, in banking in India as well as overseas. So, all put together, Vikramji have an experience of more than 28 years of experience in this field, right? So, Vikramji will guide us through this session, how to know what to buy, कैसे जाने क्या खरीदना है, right? So, Vikramji, welcome on the forum and over to you, sir. थैंक यू वेरी मच आपने मेरे को इनवाइट किया एंड थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को जो आप ऑल ऑफ यू हैव जॉइन टुडे आई विल ट्राई सैटरडे इवनिंग है तो मैं आप लोगों का टाइम जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक एक मिनट जो है वो एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर हो हमारे बीच और मैं पहले आपको एक 20 मिनट या 25 मिनट कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा देन उसके बाद वी कैन हैव अ Q&A सेशन. So with this, I will take a cue and start the presentation. Let me just share my screen. Just a minute. Just a minute. Yeah, so I hope you can see my screen. देखिए एक यूएस में स्टडी हुई थी about 10-15 years back in which they found out that wealth creation in a longer term, what is the best strategy? क्या वो इक्विटी है, क्या वो बॉन्ड्स हैं, क्या वो गोल्ड है, कमोडिटी है, रियल एस्टेट है, या आजकल तो खैर यू हैव बिटकॉइन आल्सो एंड अदर एवेन्यूज आल्सो, या हेज फंड्स है. तो वो सब का जो पास्ट 50 इयर्स 60 इयर्स का डेटा जो एनालाइज किया उसमें ये चीज निकल के आई कि वर्ल्ड में 90-95% जो अल्फा जनरेट होता है वो या मार्केट आउट परफॉर्मेंस जनरेट होती है वो होती है प्रॉपर एसेट एलोकेशन से. जैसे आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली 2 से 4 साल में हर एसेट क्लास की लीडरशिप बदलती है. लास्ट ईयर जैसे आपने देखा गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया सब एसेट्स को, उसके पहले इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया. एंड अगर आप ऐसे पीछे जाते जाएंगे तो आपको ऑन एन एवरेज लगेगा कि एवरी 2 to 4 इयर्स लीडरशिप जो है वो एसेट्स की चेंज होती है. कभी इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, कभी डेट, कभी गोल्ड, कभी कमोडिटीज. लेकिन अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि काश हमें पता होता कि इस साल क्या आउट परफॉर्म करने वाला है. वो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टल बॉल, वो तो हमारे पास है नहीं. इन एब्सेंस ऑफ दैट क्या कर सकते हैं? सो एज द सेइंग गोज इन इंग्लिश, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, आप उसको डाइवर्सिफाई करिए. एंड इसीलिए जो है एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है.
लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर इक्विटी नहीं परफॉर्म कर रहा है वो साल में, तो आप कोई भी स्टॉक खरीद लीजिए इक्विटी का, वो उसमें आपको अल्फा नहीं मिलेगा ओवरऑल मार्केट में। सिमिलरली कमोडिटीज जिस जिस साल में आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, आप कोई भी कमोडिटी खरीद लीजिए, चांसेस है कि आप अल्फा नहीं जनरेट कर पाएंगे। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम वही है। सो मल्टी एसेट जिसे कहते हैं, एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आपने सुना होगा, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या चाहे वो लोकल आपके फंड मैनेजर्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट गुरुज हो, वो सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, कंपाउंडिंग की। अब देखिए कंपाउंडिंग, सबसे सर्टन कंपाउंडिंग कहाँ होता है? फिक्स डिपॉजिट में होता है। आपको पता है कि 7% है, आप कंपाउंड करते जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन 7%, 6% आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन है, जो स्ट्रीट इन्फ्लेशन है, उसको भी मैच शेयर ना कर पाए। सिमिलरली अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि एक साल 20% बनाता है और दूसरे साल 20% खो देता है, तो उसकी भी कंपाउंडिंग जो है वो बहुत अनसर्टन रहेगी। लेकिन अगर एक पोर्टफोलियो है जो कि आपको मार्केट रिटर्न या मार्केट रिटर्न के पास देता है विद लिमिटेड डाउनसाइड, तो उसकी कंपाउंडिंग कहीं ज्यादा अच्छी रहेगी। तो एसेट एलोकेशन से सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाती है, और उस वोलेटिलिटी कम हो जाने से क्या होता है कि कंपाउंडिंग जो है वो आपकी रहती है। लेकिन देखिए अब इंडिया में क्या सिचुएशन है, ये देखिए वर्ल्ड में एसेट एलोकेशन जो है वो इंडिया में अभी भी काफी कम है, पॉपुलर नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में यूएस में 30% जो फंड्स हैं वो एसेट एलोकेशन के, या मल्टी एसेट कह लीजिए, जो भी हाइब्रिड फंड कह लीजिए, यूरोपियन यूनियन में 15% है और इंडिया में सिर्फ 1% है। तो ये चीज जो है वो अभी इंडिया में बहुत नेसेंट है। और मैं कहना चाहूंगा ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मैं जैसे लास्ट ईयर का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अगर आपने एलोकेशन किया होता गोल्ड में, तो जो भी आपका इक्विटी में जो भी रिटर्न्स जो भी ऑर्डिनरी थे वो मैच हो जाते। सिमिलरली इस साल लेट अस से सपोज फिक्स्ड इनकम अगर आउट परफॉर्म करने वाला है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम नहीं होगा तो वो फिर आप मिस कर जाएंगे। या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगर इक्विटी आउट परफॉर्म करने वाला है, तो अगर आपके पास इक्विटी नहीं होगी, तो ये एक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। एंड ये देखिए अब यूएस और यूरोपियन यूनियन मैच्योर्ड मार्केट्स हैं, इन्होंने काफी साइकिल्स देख रखी हैं। इनके इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, काफी एक्टिव हैं काफी सालों से, एंड दे हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है पोर्टफोलियो का वो एसेट एलोकेशन में या मल्टी एसेट में होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये शायद ये स्लाइड एनजे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी शायद इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो रही है आजकल मल्टी एसेट फंड या एसेट एलोकेशन की, कि बाकी सब फंड्स की तो फीस गिर रही है, लेकिन मल्टी एसेट फंड्स की ग्लोबली फीस जो है वो कहीं ना कहीं, it is, as they say in English, bucking the trends, because there is more demand by investors, especially post COVID and post 2008 people have realized कि एक सिंगल एसेट क्लास होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए, कंपाउंडिंग के लिए, इट मे नॉट बी ऑप्टिमल। क्योंकि अगर वो सपोज वो एसेट क्लास अगर 1 साल 2 साल नहीं चली, तो वो टाइम पे आपकी कंपाउंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरह हो जाएगी। अभी बिफोर हम पहले ये बात करें कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, एक सबसे अहम बात जो ये है कि अभी इस समय देखिए मार्केट में जो रियलिटीज हैं वो बेसिक रियलिटीज सेम रहती हैं ना। इन्फ्लेशन की बात करें आप, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात करें, लेकिन क्या होता है कि हर साइकिल में एक ना एक चीज जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत स्ट्रेंथ से सामने आती है। जैसे कोविड के टाइम पे ग्लोबल स्लो डाउन, इकोनॉमिक रिसेशन जो था वो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके पहले जो 2008 की क्राइसिस थी वो एक क्रेडिट क्राइसिस थी या फिक्स्ड इनकम की क्राइसिस थी, जो यूएस में जो हाउसिंग कोलैप्स हुआ था। ये वाली जो अभी जो वॉलेटिलिटी है या अनसर्टेनिटी है मार्केट में, ये इन्फ्लेशन से लेड है। तो ये देख सकते हैं, ये एक चार्ट है जो कि आपको ग्लोबल इन्फ्लेशन दिखा रहा है, और आप देख सकते हैं कि पिछले 8-10 साल में इन्फ्लेशन जो कि 3% या 2% या 4% के आसपास एवरेज किया है, वो 10% तक गया था। ये जो चार्ट है ये वर्ल्ड का 80 to 90% ऑफ द इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। और क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ गया है अभी 6-6.5% तक, लेकिन अभी भी आप देखिए तो हिस्टोरिक उससे काफी हाई है। तो वी आर स्टिल, अगर अभी आप देखा जाए तो जो डोमिनेंट
जो फैक्टर है अभी वो इन्फ्लेशन है, और इसीलिए जो जो चीज़ें इन्फ्लेशन से बेनिफिट करती हैं, चाहे वो इक्विटीज हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, वो परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत जरूरी जानना है कि अभी कौन सी इन्वायरमेंट है। इन्फ्लेशन भले नीचे आ गया होगा, लेकिन अगर हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो अभी भी काफी एलिवेटेड है। इसलिए आपने, अगर चाहे इंडियन सेंट्रल बैंक हो या जो आप लोग यूएस को फॉलो करते हैं फेडरल रिजर्व हो, वो हर मीटिंग में वार्न करता है कि इन्फ्लेशन अभी नीचे नहीं आया है और हमको हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हो। तो ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपके एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कि वी आर इन इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। और अगर आप इन्फ्लेशन को अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है तो इन अ वे यू आर लूजिंग मनी। अगर आपका रिटर्न 7% है और इन्फ्लेशन 7% है, तो आपने रियल रिटर्न जो है वो जीरो बनाए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न्स। जो आपने इन्फ्लेशन के एक्सेस में रिटर्न्स बनाए वो आपके हैं, अगर जो इन्फ्लेशन माइनस करके जो दिया वो आपने यू हैव गिवन इट टू द मार्केट। ऐसे ऐसे आप सोचिए। और क्यों सेंट्रल बैंक्स वरिड हैं, ये देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखें तो जो ग्रीन में है वो इंडिया का है, और जो ब्लू में है वो यूएस का है, फिर ये चाइना का है, और फिर ये जापान का है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो ग्लोबली है वो 6-6.5% है, लेकिन अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट देखें इंडिया का मिला लीजिए तो वो 6% से नीचे है। तो अभी भी अगर अगर आपको सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं कि रेट ऊपर जा सकते हैं, तो वो उस चीज को आपको या डरा नहीं रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर्व अगर और नीचे नहीं आता है तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग रेंज में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप श्योर हो जाएं कि इन्फ्लेशन जो है वो एक इरिवर्सिबल तरीके से नीचे गिर रहा है। अदरवाइज, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर नहीं गिरेगा वापस ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, और जो लॉन्ग एंड या ड्यूरेशन है बॉन्ड की वो नीचे आ सकती है, या इंटरेस्ट रेट ऊपर, जैसे आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो लॉन्ग रेंज बॉन्ड जो है वो नीचे आ सकता है। दिस इज समथिंग विच द इन्वेस्टर्स नीड टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स्ड इनकम। जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्यों हानिकारक होता है, व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द कंट्रीज। एज यू कैन सी, G7 जो कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस, कनाडा वगैरह हैं, जापान, जर्मनी, उसमें अगर आप देखिए कि अभी इस टाइम से अगर यहाँ से रेट्स अभी ये टाइम में भी अगर इन्फ्लेशन ये अराउंड दिस लेवल रहता है, तो इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो डेट सर्विसिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कि विच कैन लीड टू हायर फिस्कल डेफिसिट्स, वो 2.5% है। अगर इन्फ्लेशन और ऊपर जाता रहा तो ये 4-4.5% तक हो जाएगी, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, एंड दिस कैन रिजल्ट इन अ ग्लोबल स्लो डाउन। सो दैट इज व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर वेरी कीन कि इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए, नहीं तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी, दिस विल लीड टू lot of fiscal tightness and it is not good for the economy. But again, जो रिस्क अभी है कि अगर सेंट्रल बैंक्स अगर बहुत ज्यादा टाइट करते हैं तो हमारा हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग आप सुनते होंगे न्यूज में, तो वो यही है कि अगर अगर सेंट्रल बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी इन्फ्लेशन कम करने के लिए, तो एक हार्ड लैंडिंग हो सकती है इकोनॉमी की। अगर कम किए तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन ऊपर भाग जाए और ये सिचुएशन आपके पास आ जाए। एक दूसरी बात और भी है कि आप कोई भी ट्रेड, चाहे वो इक्विटी में हो या गोल्ड में हो या बॉन्ड्स में हो, एक टर्म होती है ओवर क्राउडेड ट्रेड। ओवर क्राउडेड मतलब ये है कि आप एवरीबडी इज, आज की तारीख में सपोज कोई एक आइडिया है, इन्वेस्टमेंट आइडिया है, वो हर एक ने यूज किया हुआ है, तो उसको कहते हैं ओवर क्राउडेड आइडिया। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि कोविड के टाइम के बाद से काफी पैसा जो है वो बॉन्ड्स में आया है, ये यूएस मार्केट के बॉन्ड्स हैं, यही सोचते हुए कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो खत्म हो गया है और अभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे और बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो ये एक ओवर क्राउडेड ट्रेड हो गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो ग्लोबली हैं वर्ल्ड में नीचे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज काफी लोगों ने ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट रेट की जो बेट जिसको बोलते हैं या ट्रेड है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सब चीजें भी, whenever you are investing into any asset class, as the saying goes कि you should never be behind the crowd, you should be either be with the crowd or ahead of the crowd, because if you're behind the crowd then you're too late for that trade.
सो ये टाइमिंग इशू हो जाता है। अब सबसे बड़ा जो रिस्क है वो इन्फ्लेशन को, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं। और क्रूड ऑयल प्राइसेस कहीं ना कहीं अभी कुछ सालों में उसकी जो डिमांड है वो पीक करेगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। पर तो भी अगर आप देखें कि ये एक टिल 2030 ऑलमोस्ट इट स्टिल रिमेन्स ऑलमोस्ट मार्जिनली डाउन इसकी डिमांड। और अगर ये रेड लाइन जो है, मतलब ट्रांजिशन जो है वो अगर बराबर नहीं होता है तो हो सकता है कि इट माइट रिमेन इवन फ्लैटर। तो अभी कुछ साल हैं जब आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस और परेशान कर सकती हैं। जैसे हम आज आपने देखा कि फ्राइडे क्लोज जो है वो ब्रेंट का ऑलमोस्ट $90 है और उसका $87 है WTI का। जो इंडिया जो है वो ब्रेंट फॉलो करती है, दुबई और इंडिया जो है वो ब्रेंट फॉलो करती है। तो $90 ऑलरेडी पहुंच गया है, एंड उसका इम्पैक्ट आप देख चुके हैं कि एटीएफ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, एंड ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन बास्केट है। सो दिस इज द बिगेस्ट रिस्क दैट वी हैव। और ओपेक जो है, देखिए जियो पॉलिटिक्स काफी चेंज हो गया है यूक्रेनियन वॉर के बाद। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी कम होता दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग इज कि ओपेक इज नो लॉन्गर afraid of US, and they have decided to cut the production in Q3. We are in Q3 right now, and we are approaching Q4. So Q3, Q4 are tight markets, and unless there is a slowdown in the global economy, there is a good possibility that crude oil prices will remain high from here, which means इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं दोबारा वापस आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कि अभी इन्फ्लेशन गया नहीं है। ओनली रीजन क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर आ सकती है अगर चाइना में कुछ हार्ड लैंडिंग हो जाए, या यूएस में हार्ड लैंडिंग हो जाए, या ऐसा ऐसा कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं काफी स्लो डाउन में आ जाए। और ये देखिए, ये जो है ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का जो फोरकास्ट है, इसमें आप देखिए ये 2023 का है। तो ये 2023 में ये वाला क्वार्टर जो है जिसमें अभी हम है Q3 में है, ये कैलेंडर है क्वार्टर, ये सबसे टाइटेस्ट है। इसमें बैलेंस -2.2 है, और फोर्थ क्वार्टर तक रहता है। ऑल ओनली इन जनवरी फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं क्रूड की डिमांड सप्लाई जो बैलेंस में आता है। सो वी आर करेंटली इन अ वेरी टाइट ऑयल मार्केट। सो एनी इनफैक्ट गुड न्यूज बैड न्यूज बन सकती है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रिबाउंड होता है यूएस में या चाइना में तो ऑयल प्राइसेस शायद हो सकता है और ऊपर जाए, विच कैन अगेन लीड टू हायर इन्फ्लेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बफर स्टॉक्स हैं वर्ल्ड के, स्पेशली यूएस के, अगर आप देखें यूएस ने एक एसपीआर है उनका, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनके, पेट्रोलियम रिजर्व्स, वो इसलिए उन्होंने रखा था वर्ल्ड वॉर के बाद, नॉट वर्ल्ड वॉर, जो आपकी जो 1970 में जो गल्फ वॉर हुई थी उसके बाद से यूएस ने जो है वो अपने पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा है जिसमें 500 बिलियन बैरल्स या 500-600 मिलियन बैरल रहती हैं। वो इसलिए कि कल को अगर गल्फ में लड़ाई हो जाए, उनको अगर ऑयल नहीं मिले तो उनके पास कम से कम 1-2 महीने का स्टॉक रहे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर में, एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली यूएस डिड नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ दिस। अगर ये देखिए, इन्होंने कम कुछ 200, अगर आप देख सकते हैं 200 मिलियन बैरल जो है वो अपना रिजर्व कम किया है, या मार्केट में उतना ये ऑयल लेके आए। अगर वो ये ऑयल नहीं लेके आते तो ऑयल अभी भी 130-140 पे होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनका रिजर्व जो है वो एक ऑल टाइम लो की तरफ जा रहा है और प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई है। तो इस समय उनके पास दो ही चीजें हैं, या तो वो इस लेवल पे खरीदें और प्राइसेस को और ऊपर ले जाएं, या रिस्क करें सिटिंग ऑन। तो ये एक बहुत ही दिस इज अ डेवलपिंग एंगल इन यूएस, और इलेक्शन भी आ रहा है, और जियोपॉलिटिक्स, अगर सपोज कुछ फ्लेयर अप होता है जियोपॉलिटिक्स में, देन दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कमोडिटीज में चाहे वो ऑयल हो या चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो या कॉपर हो, कितनी इन्वेंट्रीज हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि रशिया की जो ब्रेक इवन कॉस्ट जो कहीं ना कहीं $40-50 के पास आ गई थी, अभी वो $80-90 के पास आ गई है। एंड तो रशिया ने, अब जैसे आपने सुना होगा लास्ट वीक में उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है वो ओपेक के साथ मिलके। दे आल्सो वांट द प्राइसेस टू बी $80। उनका टारगेट है टू कीप द प्राइसेस अबव 90, और यूएस का टारगेट है टू कीप इट बिलो 70।
India also wants the prices below 70, but let's see. This is a very important. Instead of guessing कि क्या होने वाला है, it is better to have a hedge against that, जो कि आपका asset allocation is one of the ways to do it. ये crude जो shale output है वो उतना नहीं राइज किया है जितना एक्सपेक्टेड था, इसलिए भी मार्केट टाइट हो रहा है. इसका रीजन भी है, अगर आपका क्वेश्चन होगा क्यों है तो मैं इसको आंसर करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन ऑयल. एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव स्लाइड. इस समय जो एक एस्टिमेट है ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रांजिशन के लिए, जो एक कैलकुलेशन किया है कि पूरी वर्ल्ड को फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल है या नेचुरल गैस है उससे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने में, सोलर या इलेक्ट्रिक या जो व्हाटएवर इट इज, उसमें होने में टोटल जो खर्चा है वो $17 ट्रिलियन का अभी एस्टिमेट है ग्लोबली. उसमें से देखिए 60 ट्रिलियन यहाँ से आएगा, क्योंकि आप देखिए किसी न किसी फॉर्म में देयर आर कंट्रीज, स्पेशली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इंडिया में भी एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ना कुछ, चाहे वो एलपीजी हो या केरोसिन हो या जो भी हो, कुछ ना कुछ सब्सिडी रहती है. तो ये सब मिला के 7 ट्रिलियन है. तो जैसे जैसे ऑयल का यूजेज खत्म होगा तो ये कैपिटल फ्री होगी, एंड दिस इज रफली अबाउट 40 to 30% ऑफ द मनी नीडेड फॉर the transition to clean energy. But again, as I mentioned, कि अभी ऐसा लग रहा है, जो projections हैं, कि एकदम immediate में oil का consumption जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला है, as the case may be. Now, environment की हम लोग बहुत बात करते हैं, and we always read and see people having extreme views on environment, और काफ़ी environment को लेके प्रोटेस्ट होते हैं. तो क्या, व्हाई शुड बी वरी अबाउट इट? हमको क्यों उसकी चिंता करनी चाहिए? जैसे आप देख सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का 2023 में, इट इज एट ऑल टाइम हाई. स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, उसमें जो मैं एक्चुअली मैं जून में था यूरोप में काफी टाइम के लिए, 3 हफ्ते के लिए गया था वहां पे. हॉलैंड और फ्रांस वगैरह में इतनी गर्मी, मैंने, जबकि मैं वहाँ काम कर चुका हूँ कुछ साल, इतनी गर्मी जो जून जुलाई में मैंने देखी, मैंने आज तक कभी नहीं देखी. एंड व्हेन आई केम बैक एंड व्हेन आई सॉ दिस स्लाइड, आई रियलाइज कि क्यों इतना गर्म था. एंड इसका इफेक्ट क्या है? मतलब व्हाई शुड बी वरी? गर्म हो रहा तो ठीक है, होने दीजिए. अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है. ये देखिए, ये आपका एंटार्क्टिक का सी कवरेज है. तो ये लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स 200 ईयर्स का, ये 1991 से लेके जो वो है मीन है. आइस, मतलब ये क्या होता है कि जब समर होता है तो आइस मेल्ट करती है, जब विंटर होता है तो आइस फॉर्मेशन होती है. तो ये एक रेंज में रहती है. जैसे आप देखें ये ब्लू लाइंस हैं, ये रेंज में रहती है. ये नीचे जो है वो समर होता है, ऊपर जो है विंटर होता है. अभी देखिए क्या सिचुएशन है. अंटार्कटिका जो है वो निचला पार्ट है, आर्टिक ऊपर होता है, अंटार्कटिका नीचे है. अभी देखिए क्या सिचुएशन है, कितना आइस कवरेज समर में कितना कम हो गया है. तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है वो आपके दरवाजे या मेरे दरवाजे तक नहीं आए हैं, लेकिन काफी दरवाजों तक पहुंच चुके हैं. इट इज रीच लॉट ऑफ डोर्स, एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग अ पॉइंट where we are very close to a crash. So the idea is not to scare you, but if somebody asks a question that why we should worry about climate, this is the reason for it. And that's why it's very important कि आपका जो portfolio हो वो भी as I say कि it should be immune to climate changes. चाहे आपका वो asset class selection हो या stock selection हो, या ये बहुत important है. अभी देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो मैं आपको कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ इंडियन मार्केट के बारे में, लेकिन अब 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है. इंडिया स्टोरी जो है वो बहुत इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, एंड it's going to be there for a very long time. And एक second, I'll just so sorry to interrupt. Siri, can I call you back? I'm on a Zoom call. I'll call you back. I'm so sorry. That was my son calling. So they think I'm in Jaipur and enjoying over here and sitting on a hammock. Sorry for that. So देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, I'm not giving you a view on the equity markets or any market, because we are not allowed, neither we are mandated. But it is very important to see कि इंडिया स्टोरी जो है वो कहाँ है अभी. जैसे आप देखिए निफ्टी की ये वॉलेटिलिटी है वर्सेस S&P 500 यूएस का है.
तो दोनों की जो वॉलेटिलिटी अगर आप देखें, जो व्हाइट है वो निफ्टी की वॉलेटिलिटी है, जो ब्लू है वो यूएस मार्केट की वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं। काफी टाइम तक ये साथ थी 2018 से लेके, एंड कहीं ना कहीं आप देखें तो रिसेंट टर्म्स में ये S&P यूएस की वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, अब ये ज्यादा हो गई। तो इसके दो मायने हैं, एक तो ये है कि देयर इज सम स्ट्रक्चरल शिफ्ट, बिकॉज ये जो अगर आप देखें ये जो ट्रेंड है वो काफी 1 साल या 2 साल के बराबर है। तो इंडियन मार्केट्स जो है अभी वो इतने जंपी नहीं है जो पहले होते थे कि भी अगर यूएस मार्केट वॉलेटाइल है तो इंडिया की वॉलेटिलिटी हायर होती थी। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट एट द सेम टाइम, while it could be a structural shift in which Indian markets may not be as volatile as they have been in the past, but it is also very important कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये मीन रिवर्टिंग होते हैं। तो एक टाइम पे अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया कि यूएस मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और हम कहीं बहुत कम वॉलेटाइल है, तो वो मीन रिवर्जन जिसको बोलते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर आप वैल्यूएशन की भी बात करें तो ये जो है अच्छा, ये वॉलेटिलिटी का ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2004 से लेके अभी तक का ग्राफ है, तो इतना डिफरेंस, इतना आउट परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक्स का नहीं रहा है कभी भी हिस्टोरिकली विज़ावी द यूएस स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वॉलेटाइल, इन लेस वॉलेटिलिटी। सो ये इंडियन, एज यू कैन सी, मार्केट्स आर वेरी क्रैंक। आपको लगता होगा पिछले 1-2 साल से मार्केट गिरता ही नहीं, गिरता है तो वापस ऊपर आता है, व्हिच इज एक्चुअली बीइंग, it is not something that you're watching on the screen, it is actually being confirmed by the statistics of volatility. अच्छा, ये जो है ये ROE है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगेन ये जो डेवलपिंग मार्केट है, जो सॉरी जो DM जो है वो डेवलप्ड मार्केट है जिसमें आपके G7 है, और ये EMT जो है वो इमर्जिंग मार्केट है। तो आप देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड मार्केट है उसका और इसका डिफरेंस एक ऑल टाइम हाई पे है, विच मींस आपने काफी सुना होगा कि इट इज अ टाइम टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स। काफी जैसे बड़े बड़े जो गुरुज हैं, ग्लोबल गुरुज हैं, वो इमर्जिंग मार्केट की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ वैल्यूएशन थिंग। The valuation, despite of the rally, are still quite cheap, as you can see. The difference, जैसे आप देख सकते हैं कि DMT डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स माइनस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो डिफरेंस है वो ऑल टाइम हाई है, which means जो lot of, that is why a lot of money is coming to, well, it was coming to China also, but since China is not doing well, a lot of money is coming to India and will continue coming to India. But again, the worrying thing again over here is that these are all mean reverting trends. Similarly, अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कहीं ना कहीं just a minute, sorry, okay. So no, sorry, I think I picked up the wrong slide to show it to you. So okay, so we are talking about return on equity. So return on equity on developed market is higher than emerging market. So this means that the emerging market are overvalued vis-a-vis the developed market. But I sorry, I gave you the wrong because I was reading it the other way around. So this slide clearly shows, जैसे आप देखिए developed market का जो ROE है, higher ROE means लोअर वैल्यूएशन, लोअर ROE मींस हायर वैल्यूएशन। तो ये जो है ये ऑल टाइम हाई है, विच मींस इमर्जिंग मार्केट का जो वैल्यूएशंस है कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, एंड इसका मीन रिवर्जन होने के चांसेस हैं। कुछ इसमें स्ट्रक्चरल भी है, लॉट ऑफ मनी इज गेटिंग एलोकेटेड, मोर मनी इज बीइंग एलोकेटेड टू इमर्जिंग मार्केट विज़-वी DM। सो हो सकता है काफी टाइम तक ये, ऐसा नहीं है कि ये एकदम क्रैश हो जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा, बट ये एक कुछ स्ट्रक्चरल भी है, बट कहीं ना कहीं जाके मीन रिवर्जन होगा। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडियन मार्केट्स का जो ROE है वर्सेस जो यूएस मार्केट का ROE है, तो आप देख सकते हैं अभी ये एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस NSE 500 इंडेक्स का जो ROE था वो कुछ 13% था, और S&P 500 का जो ROE था वो कुछ 17-18% था, विच मीन्स Indian markets vis-a-vis the US markets are close to, the valuation gap is at almost high.
That doesn't mean कि Indian markets will fall from here, because as I mentioned it is structural, and जब तक flows रहेंगे तो हो सकता है difference हो सकता है. But ये सब चीजें बहुत important है आपके लिए. जब आप invest करते हैं किसी भी asset class में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि globally क्या हो रहा है. मतलब जो valuation की बात करते हैं, एक तो local valuation है. अगर कोई आपको बोल रहा है कि valuations are good, तो question should be asked that how are my valuation compared to global. That is one question you should ask your advisor and your fund manager before they are talking about the valuation. Because ऐसा हो सकता है कि आप एक ही, अगर आप, मैं यूएस में सपोज अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं सपोज एक सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का, तो हो सकता है उसका वैल्यूएशन कम हो दूसरे सेक्टर से. बट ये भी हो सकता है कि जो एनर्जी सेक्टर का वैल्यूएशन है यूएस का, वो एट ऑल टाइम हाई हो विज़-अ-वी दी ग्लोबल पीयर. सो दिस इज वेरी रिलेटिव, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आप मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट एज आई मेंशन्ड, अगर आप इन्वेस्टर हो तो you in the emerging markets, then you will worry more at this point vis-a-vis at this point. That is the question. Now gold का जो सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है कोविड के बाद, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गोल्ड ही नहीं है, माइनिंग सेक्टर एज अ होल is gone up. बेसिकली क्या हुआ है कि दो चीजें हुई हैं माइनिंग में ग्लोबली. एक तो बिकॉज ऑफ कोविड, a lot of workforce was either they were lost, they were damaged, in the sense that they became medically unfit too, because mining itself is, कितनी भी बड़ी बड़ी मशीन हो लेकिन माइनर्स आपको चाहिए. So the wage cost have increased, become expensive, plus overall costs have gone up, जिसको हम इन्फ्लेशन की, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इन्फ्लेशन जो था वो लास्ट ईयर तक एट ऑल टाइम हाई था, which is resulted in higher cost of production. तो कहीं ना कहीं आप जैसे आप देख सकते हैं कि जो कोविड से पहले ये जो कर्व था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोल्ड का, जिसमें 80% जो गोल्ड था वो 12 या $1400 पे होता था, आज की तारीख में कहीं वो 16 से लेके $1800 पर आउंस तक हो गया है. So which means that gold may not fall much, because if it falls below 1800, then it is actually going towards the cost of production, और उसके नीचे it will not be sustainable on the downside. But again, it's very important, चाहे वो equity हो, bond हो या currencies हो, short term में कोई भी ridiculous movement हो सकता है, because that depends upon an event and the flow. So that is why gold is not too far away from its cost of production even at current levels. Why gold? जैसे आप देख सकते हैं कि गोल्ड में जब भी मार्केट क्रैशेस होते हैं, तो जो गोल्ड जो है it becomes नेगेटिवली, उसका नेगेटिव कोरिलेशन बढ़ जाता है. सो अगर जैसे सपोज अगर ग्लोबल मार्केट 3% या 4% करेक्ट करते हैं, तो शायद गोल्ड इतना मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में मूव करते हैं 15% या 20% या 30%, तो गोल्ड का कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो बढ़ जाता है. और आपने देखा होगा, चाहे वो कोविड हो, 2008 का क्राइसिस हो, जब भी क्राइसिस होता है या जियोपॉलिटिकल कोई इशू होता है, गोल्ड कम्स इन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. So ये सब एसेट क्लासेस हैं, बेसिक एसेट क्लासेस हैं. सो देयर अ लॉट टू शेयर. आल्सो एक चीज में और, सिल्वर के बारे में काफी लोग पूछते हैं कि व्हाई सिल्वर. तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सिल्वर जो है इज वन ऑफ द मेटल्स, rather the only precious metals which will be used in the climate story, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो 5G हो, चाहे वो सोलर में काफी यूज होता है. और अभी देखिए क्या चेंज हुआ है थॉट प्रोसेस में, कि पहले जो सोलर पैनल बनते थे उसमें ये रहता था कि कम सिल्वर यूज करो, उसकी कॉस्ट कम करो. लेकिन क्या हो रहा है कि लैंड भी एक एसेट है, और लैंड एक्विजिशन चाहे वो इंडिया में हो या यूरोप में तो काफी कम है, मे बी ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है या यूएस कनाडा में हो सकता है, लेकिन उतना सनलाइट भी होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में तो सनलाइट है, मिडिल ईस्ट में सनलाइट है, बट लैंड इज अगेन एन एसेट. तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जो सिल्वर कंटेंट था बिफोर कोविड वो 10 मिलीग्राम पर वॉट था, अब वो मोर देन डबल हो गया, विच इज रिजल्टेड इन सिल्वर डिमांड स्काई रॉकेटिंग. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट गिविंग एन एक्सट्रीमली बुलिश कॉल ऑन सिल्वर, बिकॉज ये जो ट्रेंड्स होते हैं इसमें मंथ्स एंड क्वार्टर्स एंड ईयर्स लगते हैं. दिस इज अ ट्रेंड विच विल बी visible only in the next 5 to 10 years. So it's a long call. If you are looking towards silver, it has to be a long call of at least anywhere between 3 to 10 years.
So I'll take a pause over here because I have discussed broadly, and then as promised, I think I've taken slightly more time, 30 minutes ले लिया instead of 25 minutes. I'll pause over here, and if you have any questions, I will take it. I have more slides with me, but I will take a pause over here, and if you have any questions, I'll be very happy to answer them. But I think the basic story is, as I mentioned, that compound, अगर आप कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में कम करने के लिए उसका बेस्ट वे इज टू गो इन फॉर एसेट एलोकेशन. So that I'll stop over here and I'll take any questions if you have. Right. Thank you, Vikramji, for covering almost all the asset class you have been touched upon, right? And there are a few questions which has been there from the investor side, right? आपने Sure. सभी asset class की बात किया, right? So one question is coming from the investor कि मुझे कितने एसेट क्लास में एसेट एलोकेशन करना चाहिए एंड कितना परसेंटेज से मुझे अलोकेशन करना चाहिए. सो इज देयर एनी फॉर्मूला टू अलोकेट द मनी फॉर टू ईच एसेट क्लास? मतलब सी, आप अगर बैक टेस्टिंग करके देखें इसको तो ऑब्वियसली यू विल कम एट अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ एसेट एलोकेशन कि मुझे इतना गोल्ड रखना है और इतना, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक स्टडी करी थी फॉर एन इंडियन पोर्टफोलियो, इंडियन पेंशन, मतलब जो आप कह रहे हैं रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना चाहिए. तो उनकी स्टडी के मुताबिक ये आया था कि अगर आप गोल्ड एलोकेशन 5% से कम रखते हैं और 15 से ज्यादा रखते हैं तो वो ऑप्टिमल नहीं है. तो रेंज जो है वो 5 to 15% है. सिमिलरली अगर आप इक्विटीज की बात करें तो अगेन देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी आप कितना वोलेटिलिटी ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में. फॉर इंस्टेंस आप इक्विटी में भी सब मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कमोडिटीज में भी गोल्ड भी है, सिल्वर भी है. अगर आप बॉन्ड्स की बात करें तो जीसेक भी है, जीसेक 2 ईयर है, जीसेक 5 ईयर है, जीसेक 10 ईयर है. तो कितना आप वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि मैं अपने पोर्टफोलियो में 10% या 20% से ज्यादा मैं खोना नहीं चाहता हूँ, और कितना मेरा टारगेट. और देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपका टारगेट 40% हो और आप डाउन साइड सिर्फ 4% की या 3% की माने. देयर हैज टू बी देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ. सो दैट इज द डिफाइनिंग क्वेश्चन फॉर एवरी इन्वेस्टर. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द रीजन आई स्पोक अबाउट ओवरसीज इक्विटीज इज, जैसे आपको मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेस्टिक इक्विटी के वैल्यूएशंस और ओवरसीज इक्विटी के वैल्यूएशन में काफी गैप आ जाता है. एंड वो एवरीथिंग इज मीन रिवर्टिंग, जिसको हम कहते हैं मीन रिवर्जन होता है हर चीज का. अगर कोई चीज बहुत नीचे गिरती है, बहुत ऊपर जाती है, तो वो करेक्ट हो जाती है. इट कम्स टू द मीन. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एट लीस्ट these asset classes, local equity, overseas equity and fixed income and gold. ये 4 asset classes तो आपके पास होनी चाहिए. किस proportion में होनी चाहिए? तो आप अगर आप फंड स्ट्रक्चर देख लें, वेरियस फंड स्ट्रक्चर, तो इक्विटी जो है वो एनीवेयर बिटवीन 50 to 70% जो है वो एलोकेट कर रखा है. मैं आपको मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इतना करो, बट अगर आप बाकी सब फंड्स भी देखें, तो कंपटीटर्स हैं उनके भी अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो 50 से 70% इक्विटी एलोकेशन है उसमें. 20% के आसपास ओवरसीज इक्विटी एलोकेशन है ऑन एन एवरेज. गोल्ड एलोकेशन की बात करें तो 10 से 15% है. फिक्स इनकम की बात करें तो वो 10 से 20% है. तो ये एक रेंजेस जो दे रखी है, ये जो ऑब्वियसली आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड के लोगों ने जो डिजाइन किए हैं और सेबी ने जो अप्रूव किए हैं उसमें कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा. अगर आप यही डेटा अगर आप ले लें तो ये रेंजेस आपको मिल जाती हैं. फिर आपको मिक्स एंड मैच करके देखना है कि मैं कितना वॉलेटिलिटी लेना चाहता हूं. आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस वी हैव ऑन अस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रेंज फर्स्ट एंड देन क्रिएट अ पोर्टफोलियो. राइट. मतलब एवरी इन्वेस्टर का प्रोफाइल डिफरेंट रहता है, एवरी इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहता है. बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल एंड रिस्क एपेटाइट हम लोगों को डाइवर्सिफाइड और एसेट एलोकेशन करना चाहिए इन अ नटशेल. देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सपोज आपके पास अभी आपको लमसम पैसा डालना है,
कहाँ डालेंगे, इक्विटी में डालेंगे, गोल्ड में डालेंगे, फिक्स इनकम में डालेंगे, मतलब या तो आपका व्यू हो, अगर आप इस कैपेबिलिटी, मतलब कैपेबिलिटी तो हर एक में होती है, लेकिन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि नहीं मेरे को इसी एसेट क्लास में डालना है, लेकिन अगर आप व्यू नहीं बना पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप रैशनल हैं कि भाई मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप सब एसेट में डाल दो, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि कोई ना कोई एसेट तो चलेगा ही नेक्स्ट ईयर, इस साल, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई एसेट नहीं भी चला, सपोज आपके 4 एसेट में से अगर 2 एसेट नहीं भी चलते हैं, तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो कंपाउंडिंग में आपको बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी, बिकॉज कंपाउंडिंग का दुश्मन जो है वो लॉस है। अगर आपका पोर्टफोलियो एक बार 20% नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर अगर 10-20% बढ़ता भी है, तो वो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज वो नीचे से, एज यू सी कि 10%, 100 रुपए का पोर्टफोलियो अगर 20% गिरता है तो 80 हो जाता है, अगर वो 20% ऊपर जाता है तो वो 96 होता है। तो दैट इज वाई वॉलेटिलिटी जितनी कम रहेगी आपके पोर्टफोलियो में, उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हाँ बोलिए। Right, 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 right. Again, one more question is in regards to asset allocation only. Right? थोड़ा interesting भी है question. The customer is saying कि asset allocation which is based on मतलब my investment amount और asset allocation करना चाहिए on my net worth amount. देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का? आप आर यू यूजिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट, फॉर एडिशनल इनकम, फॉर वेल्थ क्रिएशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की बात करें, तो आप अगर रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो कि आपको इंश्योर करे कि रिटायरमेंट में आपको कैश फ्लोज की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। दैट इज वन थिंग। आप अगर उसमें सिर्फ वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट में नेटवर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई फायदा नहीं है आप रिटायर हो गए और आपने 80% अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक एफडी या किसी ऐसे रखा हुआ जिसमें आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो उसमें नेटवर्थ इज इंपॉर्टेंट। जो दूसरा है सिर्फ प्योर वेल्थ क्रिएशन, जिसमें आप रिटायरमेंट की नहीं सोच रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, उस हिसाब से आपको ये कॉल लेनी पड़ेगी। Right, right. One more question which is coming from one investor. He is saying कि आपने बहुत सारे ग्राफ दिखाए, बहुत सारे कव दिखाए। सो ही सेइंग कि मैं एक लेमन इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरी जो मंथली आय है उसका मैं 50% इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, राइट? तो मुझे कितना परसेंटेज, मतलब मैं लॉन्ग टर्म हूँ, बुलिश भी हूँ, कोई लायबिलिटी भी नहीं है, लेकिन आइडियली इक्विटी एक्सपोजर कितना होना चाहिए? देखिए, अगर आप हिस्टोरिक रिटर्न देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी में आप, इंडियन इक्विटी में आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप कहीं ना कहीं, हम लोग यहाँ इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल, जिसे कहते हैं, कन्विंस्ड ऑफ द इंडिया स्टोरी। अभी सपोज आपको कोई सेक्टर अच्छा लगता है फार्मा आपका फेवरेट सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, अभी आप वो, अगर आप उसमें नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं आप कहीं किसी और सेक्टर में, तो आप ऑटोमोटिव कंपनी तो खोल नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, एक ऑटोमोटिव कंपनी या फार्मा, जो भी आपका सेक्टर जो आपको समझता है, चाहे वो आईटी भी हो सकता है, कोई सेक्टर होता है, आपको वो सेक्टर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो बहुत आगे अच्छा करेगा, तो आप जाके उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर लेते हैं, एंड डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड में। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू आर इन इक्विटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटर्न इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी। इट इज बेसिकली, आप एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है उसको आप पैसे दे रहे हैं कि ले भाई ये मेरा पैसा तू ले ले, तू अपना फायदा कर और मेरा भी फायदा कर इसमें। तो दैट इज द बेसिक थीम। तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड सी। नाउ ऑब्वियसली equity markets are dependent upon so many things, inflation, economic growth, और economic growth जो है वो साइकिल्स में जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आजकल साइकिल्स काफी छोटी हो गई, 2 से 4 साल की हो गई हैं, कभी कभी उससे भी छोटी हो जाती हैं, दो साल के बीच में एक दो साइकिल होने के मिनी साइकिल हो जाती है। तो वोलेटिलिटी रहेगी। तो आपको ये देखना है कि मैं उतना परसेंटेज, सपोज अगर हिस्टोरिक वोलेटिलिटी इक्विटी की X% है, तो आपको वो देखना, मतलब X% के आप देखिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है इक्विटी के, या वोलेटिलिटी है वो 12 से 15% है वोलेटिलिटी, हिस्टोरिक वोलेटिलिटी, वो डेटा आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि एक साल में वो 12 से 15%, मतलब जैसे
आप बात करें तो जो फॉल्स होते हैं 1 स्टैंडर्ड डिविएशन या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आप मान के चलें तो इक्विटी में एनीवेयर बिटवीन 12 से 24% तक मार्केट गिर सकता है। तो क्या वो आप फॉल कितने पोर्टफोलियो पे आप ले सकते हैं? सिमिलरली अगर आप फिक्स्ड इनकम की बात करें तो उसमें आप देखिए वोलेटिलिटी कितनी है, 3% है या 6% है, या कितना आप गोल्ड में देख लीजिए वोलेटिलिटी कितनी है लॉन्ग टर्म, 8% है, 12% है। तो ये वर्क बैक करिए। सपोज अगर आप 100 के 100 रुपए इक्विटी में लगा देते हैं और उसकी हिस्टोरिक वोलेटिलिटी जो है वो 12% है या 24% है, तो क्या आप उतना वोलेटिलिटी वुड आप स्टमक कर सकते हैं? डू यू हैव दैट लॉन्ग टर्म? बिकॉज लॉन्ग, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रियली लॉन्ग टर्म, then actually volatility is good for you, but at the same time nobody wants to, कहना आसान है लेकिन जब आपको और हमारा पैसा लगता है और मार्केट जब 10% 20% डाउन होता है तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, लगता है कि भी क्या मुसीबत कर ली, इससे अच्छा तो एफडी में डाल देते। सो इट इज बेटर टू हैव अ रैशनल नॉन इमोशनल कि हाँ भाई मैं इतना डाउन साइड, इतना वॉलिटिलिटी मैं इतना टॉलरेट कर सकता हूँ पोर्टफोलियो में, तो ये एसेट क्लास मैं इतना ही डालूंगा। दैट इज हाउ यू शुड वर्क ऑन दिस। Right, right. Again, one question is in the context of asset allocation. If we follow the asset allocation, then what would be the tax implication on that? सो एसेट एलोकेशन में जो एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें अभी भी डेट टैक्स अपना वो जो इंडेक्सेशन अवेलेबल है, और अगर इक्विटी मोर देन 65% है तो उसमें इक्विटी अवेलेबल है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम क्या होता है कि आई डोंट नो वेयर दिस 65% फिगर इज कम फ्रॉम टैक्सेशन। उसका क्या रैशनल है? कुछ ना कुछ रैशनल रहा होगा, बट अगेन देयर विल बी सर्टेन पोर्टफोलियोज। अब जैसे पीपल हु डोंट लाइक वॉलेटिलिटी या जिनके पोर्टफोलियो बहुत बड़े हैं, क्योंकि देखिए हम सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं। अब 1,000 रुपए पे 10-20% गिरना और 1 करोड़ पे 20% गिरना, एक दो अलग चीजें होती है ना। एक में सिर्फ 200 रुपए का लॉस है और एक में 20 लाख का लॉस है। तो एक एब्सोल्यूट लॉस भी होता है। मतलब यू शुड नॉट फील कि हाँ जस्ट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट तो मैं 5%, वो 5% 10% को आप एब्सोल्यूट टर्म में भी देखिए। तो जहां आप 70-80% इक्विटी ले लेते हैं तो उसकी वॉलिटिलिटी भी हो सकता है काफी इंक्रीज हो जाए। तो टैक्स अगेन इन द लॉन्गर रन, अगर आप चाहे इंडेक्सेशन वाले बेनिफिट में रहते हैं चाहे आप इक्विटी टैक्सेशन में रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि इन द लॉन्गर रन इट विल नॉट मैटर। व्हाट विल मैटर इज आपका एसेट एलोकेशन इज एज पर योर your profile and as per what is beneficial to you. So both are available. Indexation जो पुराना डेट टैक्सेशन होता था और जिसमें ज्यादा इक्विटी है उसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, बट अगेन you have to see that whether you want extremely high equity or you want a balanced portfolio. That is something that you need to see. Right, right. Okay. Is there any fund where we can take the allocation of each and every asset class considering equity, debt, gold, commodities? So there are multi-asset funds. I mean, every fund house has got multi-asset fund. We have a multi-asset fund which has got all four asset classes. अपना allocation जो है वो 50% जो है वो domestic equity है, 20% जो है वो overseas equity है, और 15% जो है वो fixed income और gold है. That is what we have done. एंड उसका रैशनल ये था, जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव 4 asset classes. हर साइकिल में कम से कम एक एसेट क्लास तो चाहिए, अगर आप कोई भी साइकिल मोस्ट साइकिल्स में। सो इवन इफ दूसरी बात क्या है कि थोड़ा इंडिया में वी हैव अ क्रॉनिक कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। आप जैसे देख सकते हैं रुपी डेप्रिसिएशन काफी हुआ है पोस्ट कोविड, डिस्पाइट इनफ्लोज कमिंग एंड एवरीथिंग। तो वो एक स्टोरी रहेगा इंडिया में, क्योंकि अगेन इंडिया में अगर हमको मेक इन इंडिया करना है तो करेंसी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह सकती, बिकॉज स्ट्रांग करेंसी, तो वो भी आपको देखना है। तो ये एक गोल्ड एंड ओवरसीज इक्विटी में ये आपको ये बेनिफिट मिलता है। सो अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप इसी फंड में देखिए, बट अगर आपको 4 asset classes चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द फंड्स दैट यू कैन टेक अ लुक एट। Right, right, right. So,
Thank you, Vikram ji. I think most of the question you have been answered, and बाकी का जो question है, this is more of a uh, not relevant to today's session. और I request each investor कि जितना भी आपने question पूछा है, right? If we not be able to answer from this platform, आप यही question अपने advisor को पूछिए. Definitely you will get the better answer for this question. So once Yes. again, thank you, Vikramji, for sparing your time and gives your views on the each and every asset class, right? And your in a nutshell, आपका view वही है और हम सबका view वही है कि if you want to create wealth, then asset allocation is vitally important. और उसका जो weightage है, which is more than 90%, right? Rather than anything else, right? So you have to follow the right kind of asset allocation, right amount of asset allocation. And to get the proper asset allocation, I request each and every investor to consult your advisor. एडवाइजर ही है जो आपका एसेट एलोकेशन वो प्रॉपरली आपको गाइड कर सकता है, राइट? सो विद दैट नोट वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन हियर. एंड विक्रम जी, इफ यू हैव a final remarks. Yeah. See, first of all, thank you very much for inviting me for this show, and thank you very much for all of you for joining on a Saturday evening. दो चीजों से आपको बचना है, फियर और ग्रीड से. और एज आई मेंशन्ड, क्राउडेड ट्रेड की बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी क्राउड कहीं पे है तो या तो क्राउड के साथ रहिए, क्राउड से आगे रहिए. जब अगर आप बिहाइंड द क्राउड अगर आ रहे हैं तो पेशेंस रखिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एज वेल्थ क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. शॉर्ट टर्म तो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग अलग है. आई थिंक वी आर नॉट हियर टू डिस्कस ट्रेडिंग. So that is what I would like to humbly suggest, and that has been my experience also. And I wish you all good luck and all the very best in your investing journey. Thank you very much. Thank you, Vikram ji, and thank you entire team of Nippon. Thank you all the investors for joining the today's session, and special thanks to all the partners for inviting your customer into the Saturday School Forum. Thank you all. Thank Thank you. you. Have a nice weekend. Thank you, sir.